Now, to every square matrix, A is equal to Aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix where Ai is the element of it. It is very simple way. Here, if A is equal to A, B, C, D, this is the square matrix of order 2. This is a square matrix. What is the determinant of it? So, determinant of A, that is here, A, B, C, D. Same order. Now look here. This is the not modulus. Don't read modulus. इसको हम लोग मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे. इसको हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है एज इट इज आपको लिख देना है और ये आपका डिटर्मिनेंट है. एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू ओपन, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए या इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे. एंड दिस कोई भी डिटर्मिनेंट तभी बनता है किसी मैट्रिक्स का जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो. स्क्वायर मैट्रिक्स यू नो number of rows and number of columns are equal. Now for this you can write determinant of matrix of order 1. Note determinant of matrix, determinant of a matrix of order 1, like this. A is equal to this only A, this 1 by 1, then determinant of A is A, and here this is equal to A. Determinant of matrix of order 2, determinant now determinant of a matrix of order 1. एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर क्या है 1. 1 मतलब एक रो एक कॉलम. तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट दिस विल बी corresponding element, this will be 1. And after this determinant of a matrix of order 2, what will be? Let A is equal to A11, A12, A21 is a matrix of order 2. The determinant of A, this delta is equal to, this is here A1. जस्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है. और कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A11 A22 here and minus A21 this. And after this determinant of a matrix of order 3, let A is equal to this be a square matrix, be a square matrix of order 3. So what you can write? What will be determinant? Determinant of A, this is here, and delta is equal to like this. Corresponding element just A11, A12, A13, A21, A22, A23. A31, A32, A33. And how to expand? How to expand this determinant? Is that clear, sir? सही है? सही है. Determinant of A, how to expand it? By any row, any column. This is here. How many row? R1, R2, R3. This is the R1. This is the R2. This is the R3. It is here C1, C2, C3. So I will tell you here how to expand determinant. डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे सेकेंड ऑर्डर में. डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2, इस वाले डिटरमिनेंट में हम इसको रिड्यूस करेंगे.
और याद रखिए जब भी कोई एलिमेंट लिखेंगे वहां से उठाएंगे तो वो किस रो और किस कॉलम में है अकॉर्डिंग टू दिस। तो वी विल स्पेंड along R1. Now how to write delta is equal? This is the R1 element here. You will write A11. At first you will write A11 power minus 1 power R plus C. Minus 1 power R plus C. R is number of row. Oh, इसको तो बनेगा ही. Here is the number of row and number of column. So here 1 1, this is the 1 1. It is row, it is column. 1 plus 1, and you will break it. Open this. इसको close करके इसको close कर reduce कर देंगे like this. A22, A23, A32, A33. Along R1 एलिमेंट को हम पकड़ेंगे. सेकेंड हो जाएगा A12. This minus 1 power R is 1. What is the R? R is number of rows, C is number of column. ये एलिमेंट किस रो में है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो minus 1 power 1 plus 2. It becomes, इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए. A21, A23. A31, A33. And after this, last element, this A13 minus 1 power, row 1, column 3. And इसको ब्लॉक करेंगे. This you will write A21 and A22, A31, A32. So you will open it. How to write? This will be plus A11, A22, A32. Sorry, 33. And minus A32, A23. This will be minus A12. This इसमें A21, A33, A21, A33, A31, A23. Minus 1 power 4. This will be plus A13, A21, 33 minus A31 and 22. After this you will solve. This is the delta. ये इसका वैल्यू है डिटरमिनेंट. And we will spend here along R1. Also you can spend along C1. आप इस एलिमेंट को लीजिए, इसको प्राप्त करिए. जब भी किसी भी डिटरमिनेंट को हमको लुक हियर स्टूडेंट, हम कोई जरूरी नहीं है कि R1 से ही हम लोग स्पेंड करें. हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर सकते हैं. बस याद रखिएगा जब भी इसको लिखना है तो हम A11 लिखेंगे और उसके साथ साथ माइनस 1 पावर R प्लस C यानी 1 प्लस 1 किस रो और किस में है, और उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे. इस रो एलिमेंट हमने लिया 1 1, तो इसको ब्लॉक करिए, इसको ब्लॉक करिए. देखिए 1 1 लिया तो इसको ब्लॉक, इसको ब्लॉक, ये वाला छोटा बन जाएगा आपका A22, A23 और A32 और ये आपका A33. फिर यहां पर हम लिखेंगे A12, तो इसको ब्लॉक करेंगे. दिस एंड दिस लिखेंगे क्या हम A21, A21, A31 और ये 23 और ये 33. क्लियर.
एंड देन आफ्टर यहां पर एक चीज हमको बहुत जरूरी लिखना है, -1 पावर r प्लस सी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, किस रो और किस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 प्लस 2। ऑलवेज रिमेंबर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यू विल राइट, इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए, A211 A22 A21 और A31 और ये 32। ये जनरल मैंने बता दिया, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए चालू कर दीजिए। एक्सपेंशन अलोंग R2 ग्रुप चालू है क्या? चल रहे सर। अरे आप कौन सोचे, आप देख। Now expansion along R2 है। Now delta is equal to R2 क्या लिखेंगे, A21। इस एलिमेंट को लिखेंगे -1 पावर, किस रो में है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 1। इसको रिड्यूस कर देते हैं, ऑर्डर 2 में ले आएंगे, इसको ब्लॉक, बचा क्या, A12 A13, फिर ये बचा आपका A32 और ये 3। फिर आते हैं 22 A22 -1 और 2 प्लस 2, ये आपका दिस, ये भी गया, ये भी गया। A11 A13 A31 और ये 33। Again A13 this -1 पावर 1 प्लस 3, ये आपका हो गया, ये भी गया, ये भी गया। A21 A22 A31 A32, this will be now this delta is equal to 2 into -1 -5 into 4, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20 plus 20, this is 80। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस दिस इंटू दिस, एंड अगेन cos square theta minus minus plus sin square theta, and this is 1।